Assalamu alaikum students. Today we are starting 9709 winter 19 paper 3-2. Starting time is 11:01. Ending time, we'll see what will be the ending time of our paper. Now we are starting this question number one. Question number one is a question of log. We have to find the value of x up to 3 decimal places. How can we calculate this? So it will be, we can write it like ln 4 minus 3x, 3 power x equals to 6/5. Now, ln हटाने के लिए taking e on both the side. So we are allowed to write 4 minus 3 power x equals to, जब ln हटेगा तो right side वाला element e की power में आ जाएगा, e की power 6/5. This is a rule for ln. Now 3 power x equals to, अगर right side पर ले जाएं तो it will be 4 minus e power 6/5. Now, up for finding out x, taking ln on both the side again. So ln 3 power x, ln 4 minus e power 6/5. ln की प्रॉपर्टी क्या है? x ln से पहले आ जाएगा, तो x ln 3 अभी मैं नहीं लिख रहा हूं. Here it is 4 minus e power 6/5 divided by ln 3. Therefore, according to your calculator, the result will be minus 0.351. This is the value of x up to 3 decimal places. A question of 3 marks, a very simple question of log. Now, the next question. The next question is the curve with equation given has a stationary point in the interval -1 to 1. Find dy over dx and find the x coordinate of this stationary point, giving the answer correct to 3 decimal places. Now, we have to differentiate it as the equation of the curve is in fraction, means we have a numerator and we have a denominator. So use u upon v formula. What is the formula of u upon v? The formula of u upon v is vu dash minus uv dash upon v squared. So what is u? U is e power minus 2x, and the derivative of e power minus 2x is e power minus 2x, and derivative of the power is with the answer. Now, what is v? V is 1 minus x squared, and v dash will be minus 2x. After that, as we know that it is an stationary point, so it means derivative y dash is equal to 0. So use the formula vu dash, use the formula v vu dash, and u dash is minus 2 e power minus 2x. vu dash minus uv dash, u is e power minus 2x, and v dash is minus 2x divided by v square equals to 0. So divided by v square, it's not necessary to write divided by v square, क्योंकि v square जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ हमने यही लिख दिया. Not necessary to write all the things. अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें. It will be minus 2 e power minus 2x in the bracket 1 minus x square minus minus plus 2
e power minus 2x and x equals to 0. Take common minus 2 e power minus 2x. ये आपने common लिया. So it will be 1 minus x squared. It will be 1 minus x squared plus x. 1 minus x squared plus x equals to 0. So एक बार minus 2 e power minus 2x equals to 0. And the second time is 1 minus x squared plus x equals to 0. So we can say that it will be x squared minus x squared minus x minus 1 equals to 0. And after that, if we take, अच्छा, one more thing, अगर हमने यहाँ पर कॉमन लिया है इस स्टेप में माइनस 2 ई पावर माइनस 2x को, तो जो दरमियान वाला साइन होगा ये नेगेटिव होगा. So here it is negative. Therefore x is positive here. Therefore x is positive here. Now, after that, by using our calculator, what are the two values of x from this? The value of x is, the first value is 0.618 and the second value is minus 1.618. And this we have to reject क्योंकि यहाँ से जब log apply करेंगे ln0 log apply करेंगे तो वो solve नहीं हो पाएगा, तो इसको हम करते हैं reject. यहाँ से x की दो values आई, इन दो values में से कौन सी हमें accept करना है? In the question, the values of x are from minus 1 to 1. minus 1 से 1 तक की जो value है वो accept करनी है. So therefore, this value is, we have to accept this value, और ये वाली value हमें reject करना होगी क्योंकि ये minus 1 के beyond value नजर आ रही है. So this is your question number 2 of differentiation. Now, what we have in question number 3? In question number 3 is the question of algebra. Question number 3 is the question of algebra. And what we have in this question, the polynomial this, where a and b are constants, is denoted by px. When px is divided by x squared plus x minus 1, the remainder is this. Find the values of a and b. Okay. Now, I'm dividing by using long division method and finding out the remainder. Here it is x power 4 plus 3x cube. x square है नहीं तो इसको लिख दीजिए 0x square plus ax plus b divided by x squared plus x minus 1. Now, we have to make x power 4. हमें इस x स्क्वायर को x पावर 4 में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई करवाया जाएगा? x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया जाएगा, x स्क्वायर से. x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर इज x पावर 4. x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय x इज x क्यूब. x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय minus 1 is minus x square. So now, after that, जो नीचे इक्वेशन एक्सप्रेशन आएगा उसके साइंस चेंज, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट. हियर इट इज 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस ax प्लस b. अब इस x स्क्वायर को हमें बनाना है क्या? 2x क्यूब. किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? प्लस 2x से. So 2x into x square is 2x cube. 2x into x is 2x square. 2x into minus 1 is minus 2x. नीचे वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन के फिर साइंस चेंज, माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट. हियर इट इज माइनस x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2x प्लस b. अब हमें x स्क्वायर को बनाना है माइनस एक्स स्क्वायर, किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे? माइनस 1 से. सो माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस एक्स स्क्वायर.
-1 into x is -x, -1 into -1 is +1. नीचे वाली एक्सप्रेशन के फिर साइंस चेंज, प्लस प्लस माइनस कैंसिल आउट, दिस विल बी ax प्लस 3x प्लस b -1। इससे आगे हम मजीद जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और रिमाइंडर के पास हमारे पास एक्स आ रहा है, तो अगर रिमाइंडर की डिग्री कम हो जाए तो आगे मूव नहीं कर सकते हम। नाउ इन्होंने कहा है द रिमाइंडर इज 2x+3। रिमाइंडर को हम इक्वेट कर सकते हैं किससे? 2x+3 से। गिवन रिमाइंडर जो दिया गया है, द गिवन रिमाइंडर इज 2x+3। अब हम कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर देते हैं। x का कोफिशिएंट हमारे रिमाइंडर में क्या आया है? a+3, और x का कोफिशिएंट जो गिवन रिमाइंडर था उसमें क्या है? 2। तो a+3 equals to 2. What is the value of a? The value of a is -1, and the constant in our remainder is b -1, and the constant in the given remainder is 3. So what is the value of b? The value of b is 3 plus 1, 4. These are the two values जो कि a और b की हमें calculate करना थी by the given condition. This is a question of algebra of 5 marks, not a difficult question. Long division के through करते हुए remainder को हमने equate करवा दिया given remainder के साथ. The next question is question number 4, which is about trigonometry. We have to express √6 sin x plus cos x in r sin x plus alpha. So we have to use sin a plus b formula. So it will be r sin a plus b formula is sin a cos b plus cos a sin b। r साथ में लिख दीजिए आप क्योंकि r मल्टीप्लाई हो रहा है, r आप साथ में लिख दीजिए। नाउ आफ्टर दैट वी हैव टू इक्वेट sin x के साथ राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है? r cos अल्फा। sin x के साथ लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है? √6। नाउ cos x के साथ राइट साइड पर क्या लिखा हुआ है? r sin अल्फा। cos x के साथ लेफ्ट साइड पर क्या लिखा हुआ है? 1। ये इक्वेट किया आपने। अब हमें मालूम है, हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, आर स्क्वायर किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर इक्वल होता है √6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू जो भी राइट साइड पर कांस्टेंट आ रहा है उसके स्क्वायर करके ऐड कर लिया जाए तो वो किसके इक्वल आ जाता है? आर स्क्वायर के इक्वल। तो इट विल बी 6 plus 1. So r equals to √7. The value of r is √7. And how can we calculate alpha? हम लिख सकते हैं tan alpha equals to sin की इक्वेशन का कांस्टेंट ऊपर, cos की इक्वेशन का कांस्टेंट नीचे। tan alpha equals to 1 upon √6. And by using this, alpha is equal to, according to your calculator, the alpha is 22.208. We have to write alpha in 3 decimal places. So therefore, we can say that our equation is √7 sin x plus 22.208। ये हमने अपनी इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया। कौन सी इक्वेशन को? √6 sin x cos x को। for 3 marks। Now what is in the next part? Next part में most probably इसको solve करवाएंगे, तो हम जरा इसको copy कर लें। So now what we have in the next part? Yes, here hence solve the equation। मैं complete equation को copy करके लेकर आ रहा हूँ। Here it is sin x plus cos x। Now अगर इसको हम कॉपी करके अपने नेक्स्ट पार्ट में लेकर जाते हैं,
Now, here is the equation. अब देखिएगा, जो सेकंड पार्ट की गिवन इक्वेशन दी गई वो क्या दी गई, √6 sin 2 थीटा cos 2 थीटा, और हमारे पास है x. इट मींस x को हमें कन्वर्ट कर देना है 2 थीटा में, तो हम लिख सकते हैं √6 sin 2 थीटा प्लस cos 2 थीटा किसके इक्वल है, √7 sin 2 थीटा प्लस 22.208, ये इसके इक्वल हो गया. अब आइए वर्किंग स्टार्ट करते हैं. √7 sin 2 थीटा प्लस 22.208 इज इक्वल्स टू 2. ये आपको गिवन दिया गया सेकंड पार्ट के क्वेश्चन. नाउ sin 2 थीटा प्लस 22.208 is equals to 2 upon √7. Sin is positive. Sin is positive. कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट. साइन पॉजिटिव फर्स्ट एंड द सेकंड क्वाड्रेंट. अब जरा हम रेंज को भी कन्वर्ट करें अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन. 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2, सो हियर इट इज 0. 2 थीटा प्लस 2.22.208. जब 180 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो 360. 360 प्लस 22.208 will give us 382.08. हमें 0 से लेके 382.08 तक मूव करना है. जरा देखते हैं आप किस तरीके से होगा. फर्स्ट कैलकुलेट द बेसिक एंगल. साइन इनवर्स ऑफ 2 अपॉन √7. सो द बेसिक एंगल इज 49.11. 49.11. Here is the basic angle. Here is the basic angle. So the first angle is 49.11. Means we can say that 2 theta plus 22.208 equals to 49.11. And the second angle is 180 minus 49.11. It will be 130.89. And the third angle will be 360 plus 49.11. So 360 plus 49.11. This will be 409.11. जबकि हमें तो 382.08 तक जाना है. तो इट मींस थर्ड एंगल हम कैलकुलेट नहीं करेंगे. सिर्फ ये दो एंगल्स आएंगे. आफ्टर दैट हाउ टू कैलकुलेट थीटा, subtract 22.208 from both of the values and divided by 2. So you will get the result. The first value will be 13.45 and the second value will be 54.341. These are the two values of the angle between 0 to 180 degrees. Between 0 to 180 degrees. Now, the next question. Question number 5. Again, the question of differentiation. What we have in this, the equation of the curve 2x squared y minus xy squared equals to a cube. Implicit differentiation का question दिया गया. Show that there is only one point on the curve at which the tangent is parallel to x-axis. Tangent अगर x-axis से parallel होगा, तो it means y dash equals to 0 होगा. It means y dash equals to 0 होगा. Now differentiate करते हैं. अब implicit differentiation आपको याद रखना चाहिए कि implicit में जब भी y को differentiate करते हैं, तो साथ में y dash आ जाता है. तो अब आप देखिए फर्स्ट जो differentiate कर रहे हैं हमने 2 ऐसे ही रखा. x स्क्वायर y के ऊपर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं. u द डेरिवेटिव ऑफ v, y का डेरिवेटिव 1, तो साथ में क्या आ गया y डैश प्लस v द डेरिवेटिव ऑफ u. u कितना है x स्क्वायर, तो डेरिवेटिव क्या हो गया 2x माइनस अगेन x u y स्क्वायर v, तो u द डेरिवेटिव ऑफ v, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, और अभी आपको बताया कि साथ में y डैश आ जाता है जब भी y को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस v द डेरिवेटिव ऑफ u, इट इज 1,
इक्वल्स टू ए क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0 हो गया। नाउ मल्टीप्लाई कीजिए 2x² वाई डैश प्लस 4xy माइनस 2xy वाई डैश माइनस y² इक्वल्स टू 0। वाई डैश कॉमन लीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अब ये, y² माइनस 4xy डिवाइडेड बाय 2x² माइनस 2xy। हमें मालूम है रेडियंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इट मींस y डैश इक्वल्स टू 0। इट मींस y डैश इक्वल्स टू 0। देयरफॉर y² माइनस 4xy इक्वल्स टू 0। y कॉमन, y माइनस 4x इक्वल्स टू 0। एक बार हो गया y इक्वल्स टू 0 और एक बार हो गया y इक्वल्स टू 4x। अब आप देखिए इसको तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर y 0 हो जाए तो कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। y इक्वल टू 4x को लेकर चलते हैं हम। वी हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट, वी हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट। तो अब वी हैव टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट, तो y इक्वल्स टू 4x को हम रखते हैं जरा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रखते हैं 2x², y की जगह पर हमने रखा 4x माइनस x, y की जगह पर रखा 4x, तो 4x का स्क्वायर कितना हो गया, 16x² equals to a cube. Now for this 4 to the 8x³ minus 16x³ equals to a cube. For this minus 8x³ equals to a cube. And now x³ equals to a³ over 8 माइनस 7 में लगा दिया, तो x क्या हो गया, क्यूब रूट ऑफ द राइट साइड। क्यूब रूट से माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता, माइनस ऐसे ही रहेगा, इट विल बी a over 2। x की वैल्यू आ गई जनाब हमारे पास a over 2। So therefore what is the value of y? The value of y is 4 times minus a over 2 and it will be minus 2a. This is the value of y in terms of a। हमें y के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने थे, तो y के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जनाब, y equals to -2a। A question of 7 marks। Again आप देखिए, not a difficult question, just we have to differentiate by implicit function और उसके साथ x और y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। Now we are moving further। Now question number 6, the variables x and theta satisfy the differential equation means we have to solve the differential equation। स्टार्ट करते हैं जनाब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, फिर वही इंटीग्रेट करना होगा एंड ऑल द थिंग्स। x के साथ सारे x को लेकर आ जाइए, सो 1 ओवर, इट विल बी 1 ओवर x प्लस 2 dx इक्वल्स टू साइन हाफ थीटा, अगर कॉस हाफ थीटा के नीचे जाता है तो क्या हो जाएगा, कॉस ओवर साइन कॉट, या चले इसको मैं ऐसे लिखता हूं, कॉस हाफ थीटा डिवाइडेड बाय साइन हाफ थीटा d theta। Now after that we have to integrate both the sides। इंटीग्रेट करते हैं जनाब। हियर लेफ्ट साइड पर डिनोमिनेटर की होल पावर 1 है, तो देयरफॉर क्या यूज होगा, ln यूज होगा। न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है, x प्लस 2 का डेरिवेटिव है 1 ऊपर मौजूद है, तो इंटीग्रल क्या हो गया, ln ऑफ द डिनोमिनेटर x प्लस 2। अब आइए राइट साइड पर, साइन हाफ थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस हाफ थीटा, और साथ में क्या आ जाएगा जनाब, साथ में आ जाएगा हमारे पास एंगल का डेरिवेटिव विच इज हाफ। तो जनाब ऊपर मौजूद है हमारे पास कॉस हाफ थीटा, बट वी डोंट हैव हाफ हम अपनी तरफ से लगाएंगे, हाफ हम यहाँ पर अपनी तरफ से लगा देते हैं न्यूमरेटर में।
हाफ अपने अपनी तरफ से लगा दिया न्यूमरेटर में, हाफ हमने अपनी तरफ से लगा दिया न्यूमरेटर में, तो जनाब बाहर भी हमें लगाना पड़ेगा हाफ। हियर इट इज हाफ। और बाहर हमने जब यहां पर हमने न्यूमरेटर में हाफ लगाया है, तो बाहर हमें कहाँ लगाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में हाफ लगाना पड़ेगा। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर में हाफ अगर लगाते हैं तो 1/1 ये हाफ लगाया ताकि हाफ एंड हाफ कैंसिल हो और इक्वेशन बैलेंस हो जाए। नाउ डिनोमिनेटर का कंप्लीट डेरिवेटिव न्यूमरेटर में मौजूद है, तो अब हम लिख सकते हैं ये हाफ पलट के 2 हुआ, ln साइन हाफ थीटा। ये आपका राइट साइड का इंटीग्रल आ गया, प्लस सी। अब हमें कैलकुलेट करनी है सी की वैल्यू। किसी चीज को भी छेड़े बिना आपने एक्स और थीटा की वैल्यू रख देनी है और सी कैलकुलेट कर लेना है, और सी कैलकुलेट कर लेना है। सो नाउ ln, what is the value of x? The value of x is 1, so it will be 3 equals to 2 ln. What is the value of theta? Theta is pi by 3. अगर pi by 3 यहाँ रखते हैं तो क्या हो जाएगा, pi by 6. And what is sine pi by 6? It will be sine pi by 6 plus c. Here it is ln 3 minus 2 ln. What is sine pi by 6? Sine pi by 6 is half. So it is ln half equals to c. c की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, ln 3 माइनस 2 ln हाफ। मजीद इस पर वर्किंग करते हैं अगर हम, तो ln 3 माइनस ln, इसको अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी से पावर में ले जाएं, ln 1/4। मजीद वर्किंग करते हैं, c इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन हो रही है तो क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1/4, and therefore the final answer for c will be c equals to ln 4 3s are 12. c आ गया ln 12. Now in this equation ln 3 equals to 2 ln sine pi by 6 plus c, and c is ln 12. Now ln 3 equals to, ln 3 equals to, सॉरी इसमें हमें नहीं बल्कि हमें प्रीवियस इक्वेशन में रखना है इसको, in this we have to put in this, इसमें रखना है हमें। So here it will be ln x plus 2 equals to 2 ln sine half theta plus ln 12. Now ln x plus 2 equals to, इसको लिखा जा सकता है ln, ये फिर ऊपर आ जाएगी पावर में तो साइन स्क्वायर हाफ थीटा, साइन स्क्वायर हाफ थीटा प्लस ln 12। नाउ मजीद आगे वर्किंग कर रहे हैं, हर तरफ ln है तो इट विल बी x plus 2, इट विल बी x plus 2 इक्वल्स टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 12 साइन स्क्वायर हाफ थीटा। सो नाउ साइन स्क्वायर हाफ थीटा इक्वल्स टू x plus 2 डिवाइडेड बाय 12। हमें बच्चों आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ कॉस, तो जनाब कॉस में कन्वर्ट करते हैं, साइन स्क्वायर हाफ थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर हाफ थीटा इक्वल्स टू x plus 2 डिवाइडेड बाय 12। मजीद वर्किंग कर रहे हैं, cos स्क्वायर हाफ थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस x plus 2 डिवाइडेड बाय 12, cos स्क्वायर हाफ थीटा equals to, by taking LCM, 12 minus x minus 2 over 12. So cos square half theta, cos square half theta equals to 12 minus 2 is 10 minus x over 12. And now cos half theta equals to under root 10 minus x over 12, and half theta equals to cos inverse of under root, yeah, wait, we just have to write in terms of cos, so it's enough, यहाँ पर हम इसको
छोड़ सकते हैं क्योंकि वी हैव टू राइट आवर रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस थीटा। तो दैट्स व्हाई हमने क्या किया, इसको कॉस की फॉर्मेट में छोड़ दिया, कॉस इनवर्स में नहीं लेकर आए। सो दिस इज the whole question of question number 8, question number 6 of 8 marks, question of differential equation. Hopefully the question is clear. And now, question number 7. Now, question number 7. What we have in question number 7, जरा चेक करते हैं, एक मिनट रुकिएगा। Now, question number 7. Question number 7 is question of differential equation, oh sorry, complex numbers. कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 जरा चेक करते हैं व्हाट वी हैव इन दिस क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले आपसे कहा गया फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying the equation, complex number z satisfying the equation where equation is this, where z conjugate denotes the complex conjugate of z given. Give your answer in the form of x plus iota y, right? So I'm just let z equals to x plus iota y, a general complex number. So z conjugate is x minus iota y. We just have to replace z by these values. So z की जगह पर हम लिखेंगे x plus iota y plus iota. Z is x plus iota y over z conjugate is x minus iota y minus 2, या चलें equals to मैं 2 लिख रहा हूं by taking LCM। इक्वल टू में 2 ले गया ताकि एलसीएम लेने में आसानी हो, वरना कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। सो x plus iota y into x minus iota y, it will be a square minus b square. So a square minus iota y का square b square plus iota x plus iota y divided by x minus iota y equals to 2. Now a square is x square, iota square is -1, so it will be plus y square plus iota x plus iota y equals to 2x minus 2 iota y. अब आइए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वेयर नाउ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर minus 2x plus iota x plus iota y plus 2 iota y equals to 0. अब हम एक काम करेंगे, रियल को इक्वेट करेंगे 0 से और इमेजिनरी को अलग इक्वेट करेंगे 0 से। So the real is x square plus y square minus 2x equals to 0, and the imaginary is x plus y plus 2y equals to 0. इमेजिनरी को हमने 0 से इक्वेट किया और इसके बाद हमने रियल को 0 से इक्वेट किया। सो नाउ अब मजीद वर्किंग करते हैं जनाब। इसको हम लिख सकते हैं x plus 3y equals to 0। यहां से अगर मैं x की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं, x equals to -3y, सब्स्टिट्यूट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, x की जगह पर -3y होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -2 -3y equals to 0। y की वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे अब, इट विल बी 9y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6y equals to 0, 10y स्क्वायर प्लस 6y equals to 0, y कॉमन,
10y plus 6 equals to 0. एक बार हो गया y equals to 0 और एक बार हो गया y equals to minus 6 over 10 will be 3 over 5 will be 3 over 5. y 0 को कर दिया रिजेक्ट. अगर y 0 हो गया तो कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा. y minus 3 upon 5 को रखते हैं जरा x में. So x equals to minus 3 and what is the value of y? Minus 3 over 5. So the answer will be 9 over 5. x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई. हमने सपोज किया हुआ था z किसके इक्वल है? x प्लस आयोटा y के इक्वल. तो देयरफॉर z किसके इक्वल हो गया? 9 over 5. 9 over 5 minus 3 over 5 iota. Minus 3 over 5 iota. This is the value of z जो कि हमें कैलकुलेट करनी थी. होपफुली दिस इज क्लियर. जस्ट हमने z की वैल्यू रखी है, सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास रिजल्ट आया है. नाउ मजीद आगे चल रहे हैं जनाब. व्हाट इज नेक्स्ट? द नेक्स्ट वन इज the B part, Argand diagram. Okay, the question is of 2 mark. Argand diagram का क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स का आता है, लेकिन इस बार इसने सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन दिया है. ना क्या कहा गया? मॉड्यूलस ऑफ दिस इक्वल्स टू 2. जब भी मॉड्यूलस के साथ एक z आ जाए, वी हैव टू मेक अ सर्कल. सर्कल का सेंटर कैसे आएगा? z इक्वल्स टू 2 आयोटा. इसको इक्वेट कर दिया हमने 0 से. ये आ गया सेंटर. मींस y एक्सिस में 2, x एक्सिस में 0. और व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल बनाते हैं जनाब. सर्कल कुछ इस टाइप का बनकर आएगा. सेंटर ऑफ द सर्कल क्या हुआ हमारे पास? सेंटर ऑफ द सर्कल ये हुआ y एक्सिस में 2. रेडियस कितना हो गया? 2 का रेडियस हो गया 2 राइट, 2 लेफ्ट. Here it is 2. So this is 4 and this is 0. Second one, imaginary z equals to 3. Imaginary का मतलब क्या होता है? y एक्सिस. y एक्सिस में 3 की आपने लाइन बनानी है. तो y equals to 3 की आपने लाइन बना दी. Here is y equals to 3. यहाँ पर क्या है जनाब? 3 है. ये आपकी डायग्राम कंप्लीट हुई. किसकी? आर्गन डायग्राम अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y equals to 3 की लाइन बनानी है हमें और साथ में एक सर्कल बनाना है. ये आपकी आर्गन डायग्राम कंप्लीट हुई. इक्वल टू का साइन है, इस वजह से हमें शेडिंग नहीं करना. अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता, इनइक्वालिटीज होती, तो शेडिंग हम करते. तो हम शेडिंग करते. राइट ना. मजीद आगे चलते. ओके, नेक्स्ट पार्ट भी दिया गया है. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट द टू लोसाई इंटरसेक्ट एट P. क्या कह रहे हैं? ये दोनों जो लोकस है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये P के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं. इंटरसेक्ट्स एट P. Find the exact argument of the complex number represented by P. Right. हमें argument of the complex number represented by P. हमें argument कैलकुलेट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का. कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z. कॉम्प्लेक्स नंबर इज Z. तो जनाब आर्ग्यूमेंट क्या होगा? यहां से आप चलेंगे और इस P तक का जो एंगल आएगा, दैट इज कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स नंबर. वो सॉरी, दैट इज कॉल्ड द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z. नाउ कहां तक P तक आपने कैलकुलेट करना है? जरा चेक करते हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस एंगल. थोड़ी सी मैं डायग्राम को इनलार्ज करके वर्किंग कर रहा हूं क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प हमें लेना होगी. अब आप देखिए, अगर हम सेंटर को ज्वाइन कर दें P के साथ, तो हमें मालूम है ये लेंथ कितनी है? 1. रेडियस कितना है? 2. तो हम ये ब्लू वाली लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. एंड अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस इज 2. 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर प्लस this square. So now this length will be
4 minus 1 under root 3. This length will be under root 3. तो इस लेंथ को हम कह सकते हैं दिस लेंथ इज अंडर रूट 3. मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पर. सॉरी. ओहो. दिस लेंथ इज अंडर रूट 3. यहाँ पर हम लिख रहे हैं हियर इट इज अंडर रूट 3. ना अब आप देखिए अगर हम ये वाला ट्राइंगल देखें ट्राइंगल ओ पी. let's say I'm saying that this is P dash. OPP dash. Triangle OPP dash. Now, in triangle OPP dash, the triangle is like this. The triangle is like this. This is P dash, this is P, and this is O. We know that this is under root 3, and we know that this is 3. अगर हम कैलकुलेट करना चाहें ये वाला एंगल, let's say this is theta. So I'm using tan theta equals to opposite over adjacent. Adjacent is 3. Opposite over adjacent. Adjacent is 3. यहां से अगर हम थीटा कैलकुलेट करते हैं तो थीटा कितना आ रहा है बच्चों? कैलकुलेटर इन रेडियंस. थीटा आ रहा है जनाब पाई बाय 6 का. बट वी हैव टू कैलकुलेट दिस ग्रीन एंगल एक्स. तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? एक्स हो जाएगा 90 डिग्रीज पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6. 90 minus pi by 6. According to this, it will be pi by 3. और ये क्या हो जाएगा जनाब? आर्ग्यूमेंट जो हमें कैलकुलेट करना था in the second part. This is the argument. Hopefully it is clear how to calculate the argument. एंगल किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक रूल्स अप्लाई करते हुए एंगल हमने कैलकुलेट किया. Next question is again question of algebra, partial fraction. सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में क्या देखना पड़ता है कि ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है, जरा चेक करते हैं. डिनोमिनेटर को सबको मल्टीप्लाई करवा दीजिए एक्स क्यूब, न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर. इफ न्यूमरेटर्स डिग्री इज लेस देन द डिनोमिनेटर्स डिग्री देन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन. बस अब वर्किंग स्टार्ट कर दीजिए. सो इक्वल्स टू दोनों ब्रैकेट्स को आपने अलग अलग लिख देना है. 2x minus 1 plus x square plus 2. Degree of the first numerator is 1, तो ऊपर क्या आ जाएगा a. Degree of the second numerator is 2, तो ऊपर क्या आ जाएगा bx plus c. Now cross multiplication, so it will be 2x square plus x plus 8 equals to a के साथ मल्टीप्लाई होगा x square plus 2 और bx plus c के साथ मल्टीप्लाई होगा 2x minus 1. First let 2x minus 1 equals to 0. So what is the value of x? The value of x is 1 upon 2. जब इसमें रखेंगे आप, so the left side will equals to 9 and the right side 2x bx plus c वाली टर्म खत्म. a के साथ क्या रह जाएगा? 1 upon 4 plus 2. So the value of a by this is 4. After that coefficient comparison. a multiplied by x square is ax square. तो a लिख रहा हूं मैं सिर्फ, and bx multiplied by 2x is so 2bx square. तो क्या हो गया 2b and लेफ्ट साइड पर x square के साथ लिखा हुआ है 2. a की वैल्यू हमें मालूम है 2 minus 1. So what is the value of b? The value of b is 1 upon 2. The value of b is 1 upon 2. First हमने now after that अब हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ c. अच्छा b की वैल्यू मैं फिर से चेक कर लूं. ax स्क्वायर और 2bx स्क्वायर ओके इक्वल्स टू 2. ठीक हो गया. The value of a is 4. Sorry, the value of a is 4, not the value of a is 1. The value of a is 4. So the value of a is 4. 2 minus 4, it is minus 2.
So the value of b is -1. And after that for c, how to calculate c? c के लिए हम constants को equate कर देते हैं. a multiplied by 2 is 2a, and c multiplied by -1 is -c, equals to the constant is 8. So what is the value of c? The value of c is 2a minus 8. A is 4. So 4 to the 8, therefore c is 0. So it means the result is 4 upon 2x minus 1 minus x upon x squared plus 2. This is the result for the first part. And after that, what we have to do in the second part, check करते हैं. Second part में हो सकता है integrate करना हो. Let's say what we have to do in the second part. Yes, in the second part we have to integrate the partial fraction. Now here is the function जो कि हमने partial fraction से break करके generate किया है. Now we have to integrate this. इंटीग्रेट करने के लिए हमें रूल याद रखना है. डिनोमिनेटर की अगर होल पावर 1 है तो इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में देखो, तो लॉग यूज करते हुए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. नाउ अब आप देखिए 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है? 2. ऊपर लिखा हुआ है 4. कोई बात नहीं, आप 2 लिखिए, 2x माइनस 1, और इंटीग्रल साइन के बाहर 2 ले जाइए ताकि 2 2 4 हो जाए, इक्वेशन बैलेंस रहे. माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डेरिवेटिव है 2x और ऊपर लिखा हुआ है x. कोई बात नहीं, 2 खुद से लिख दीजिए, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, और बाहर लिख दीजिए 1/2 ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए. नाउ अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें. 2 ln 2x माइनस 1 माइनस हाफ ln एक्स स्क्वायर प्लस 2. ये आपने कर दिया. इसको इंटीग्रेट, c इसमें आएगा नहीं क्योंकि लिमिटिंग इंटीग्रल है. लिमिट्स आपको दे दी गई है. लिमिट्स कहां से कहां तक है? 1 से लेकर 5 तक. सुना, अपर लिमिट 2 ln, जब 5 रखा जाएगा तो 5 2 10, 10 minus 1 9, माइनस हाफ ln 5 square is 25, 25 plus 2 is 27. This is upper limit minus lower limit 1. So 2 ln 1 minus half ln 3. This is lower limit. So it will be, अगर हम इसको 2 को पावर में ले जाएं तो it will be ln 9 square is 81 माइनस, अगर इसको भी पावर में ले जाएं हाफ को भी तो 27 पावर हाफ, माइनस ln 1 is 0, so minus minus plus, the last thing is ln 3 power half. मजीद आगे वर्किंग करते हैं. सिंप्लीफाई अगर इसको करना है तो इट विल बी ln 81 मल्टीप्लाई बाय ln 81 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर हाफ डिवाइडेड बाय 27 पावर हाफ. सब देखिए आप 3 के मल्टीपल चल रहे हैं, तो अब 3 पर आते हैं, वर्किंग करते हैं. 81 को हम लिख सकते हैं, 81 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 4. तो इसमें ऐड क्या हो गया? हाफ, बेसिस सेम की वजह से, और डिवाइडेड बाय 27 को 3 का क्यूब, मतलब 3/2 पावर हो जाएगी. तो 3/2 जब ऊपर आएगा तो माइनस 3/2. सो इट विल बी ln, एंड 3 पावर इज, जब इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो इट विल बी 3. सो द फाइनल आंसर इज 3 ln 3. आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ln और ln 27 दोनों आंसर दे सकते हैं. This is the question of partial fraction with integration. Now, what is next? Next question is again the question of integration with the combination of trigonometry. With a combination of trigonometry. Start करते हैं जनाब. आपसे कहा गया it is given that if we integrate x cos 1/3x, then the result is 3. We have to show something. We have to show something. करते हैं जनाब. इसमें u into v का फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा. एंड व्हाट इज द इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला? u into v को अगर इंटीग्रेट किया जाए तो इट विल बी u द इंटीग्रल ऑफ v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u
integral of v dx and whole dx. After that, and whole dx. After that, we are जो इसमें u सपोज किया जाता है by using late rule. अगर log है क्वेश्चन में तो वो u होगा, लेकिन log नहीं है हमारे क्वेश्चन में, अलजेब्रा है तो वो u होगा. यस, अलजेब्रा है, x है, तो x की जगह u की जगह पर हम x रख देंगे. सो देयरफॉर जब इंटीग्रेट किया गया तो इट विल बी u द इंटीग्रल ऑफ cos 1/3x dx minus differentiation of u is x, integral of v is cos 1/3x dx. अब बेसिक इंटीग्रेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ताकि यहां पर आप उसको इंटीग्रेट कर सकें. x cos 1/3x से क्या हो गया, sin 1/3x डिवाइडेड बाय द डेरिवेटिव ऑफ द एंगल. 1/3 डिवीजन में आएगा तो साथ में यहां आ जाएगा 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, cos 1/3x को फिर वही 3 sin 1/3x dx. So now it will be 3x sin 1/3x माइनस 3 बाहर आया, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, तो ये प्लस हो गया cos 1/3x, वही बेस का एंगल का डेरिवेटिव अपॉन में 1/3 जब पलटेगा तो 3 3 इसको कर देगा 9, इसको कर देगा ये 9. लिमिट्स कहां से कहां तक की हैं? लिमिट्स हैं 0 से लेकर a तक की. लिमिट्स अप्लाई करते हैं जनाब. अपर लिमिट 3a साइन a/3 प्लस 9 cos a/3 upper limit minus lower limit, and the lower limit is 0. So first term is 0 and the second term is cos 0 is 1, it is 9. So हम लिख सकते हैं 3a sin a/3 plus 9 cos a/3 plus 9. आपसे कहा है रिजल्ट किसके इक्वल होना चाहिए? रिजल्ट किसके इक्वल है? 3 के इक्वल. तो इक्वल कर दिया इसको 3 से. अब हमें a को बनाना है सब्जेक्ट. a को बनाना है अब हमें किसी तरीके से सब्जेक्ट. करते हैं जनाब वर्किंग. 3a sin a/3 plus 9 cos a/3 equals to 3 minus 9. 3 minus 9 is minus 3. 3 minus 9 is minus 3. मजीद वर्किंग करते हैं आगे. मजीद आगे वर्किंग कर रहे हैं जनाब, और ए को हमें किसी तरीके से बनाने हैं सब्जेक्ट. सो हम लिख सकते हैं यस यस 3 minus 9 is minus 6. Here it is plus 9. It is not minus 9. It is plus 9. So now, जिसकी वजह से ये 9 जो है ये नेगेटिव हुआ, और 9 जब उधर जाएगा तो रिजल्ट विल बी 9 plus 3 is 12. 9 plus 3 is 12. The result is 9 plus 3 is 12. Now, मजीद आगे चलते हैं. हमें a को किसी तरीके से सब्जेक्ट बनाना है. करते हैं जनाब, किस तरीके से सब्जेक्ट बनेगा. अगर यहां से हम 3 कॉमन ले लें तो इट विल बी a sin a/3 plus 3 cos a/3 equals to 12/3 is 4. And now a sin a equals to, अब हम a को लिख सकते हैं 4 minus 3 cos a/3 divided by sin a/3, and this we have to prove. यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था कि a को सब्जेक्ट बनाइए. मींस इट्स नॉट बेसिकली अ सब्जेक्ट, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ इटरेशन. तो देयरफॉर हमें a
एक ए को एक तरफ करना है, बाकी तमाम ए को हम राइट साइड पर लेकर आ गए. नाउ आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन इन द नेक्स्ट पार्ट, वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट ए लाइज बिटवीन 2.5 एंड 3. कोई बात नहीं, वर्किंग करते हैं जनाब. हम अपने लास्ट स्टेप को कॉपी करते हैं. लास्ट स्टेप को कॉपी करते हैं, यहां लेकर आते हैं. In the second part, and we have to prove that A is in between, 2.5 and 3. तो इसके लिए फंक्शन ऑफ ए डेवलप होगा, और फंक्शन ऑफ ए में क्या होगा, तमाम चीजें एक तरफ आ जाएंगी. ए माइनस 4 माइनस 3 कॉस ए ओवर 3 डिवाइडेड बाय साइन ए ओवर 3. अब आप सबसे पहले रखिए फंक्शन में वैल्यू 2.5, कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व कर लीजिए और देखते हैं जरा 2.5 पर क्या वैल्यू जनरेट हो रही है. इट इज माइनस 0.1 विच इज लेस देन 0. अब 2.5 को हटाकर 3 रख दीजिए. जब कैलकुलेटर में 3 रखा गया, सो द वैल्यू इज पॉजिटिव 0.1. यस, यही तो हमें प्रूफ करना था कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, तो यही तो बताता है कि ए लाइज बिटवीन द गिवन वैल्यूज. नाउ आफ्टर दैट यूज आइटरेटिव फॉर्मूला. आइटरेटिव फॉर्मूला यूज करते हैं जनाब, और कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ ए को. दिस इज द आइटरेटिव फॉर्मूला. ए नॉट मैं कैलकुलेट कर रहा हूं. ए नॉट मैं सपोज कर रहा हूं जो हमारी फर्स्ट वैल्यू 2.5. ए नॉट को अगर 2.5 हम कंसिडर करते हैं, लेट्स से ए नॉट इज 2.5, ए नॉट इज 2.5, देन A1 कैलकुलेटर में रखकर आपने ए नॉट 2.5, ए है इन बिटवीन 2.5 एंड 3, तो ए नॉट चाहे 2.5 लें चाहे 3 लें, ऑटोमेटिकली ये आपको आंसर के करीब ले जाएगा फॉर्मूला, राइट. सो नाउ अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं जनाब 2.5 के बाद क्या वैल्यूज आ रही हैं. सो इट विल बी 4 माइनस 3 कॉस 2.5 divided by 3, 2.5 divided by sine, कैलकुलेटर इन रेडियंस, डिवाइडेड बाय साइन. ए कितना है हमारे पास, 2.5 divided by 3. So here is the answer. The answer is 2.67. The answer is 2.67876. The answer is 2.67876. अब आपने क्या करना है, अब तो बस जहां जहां आपने 2.5 रखा है वहां वहां आपने आंसर लिखना है और कैलकुलेटर में इक्वल टू दबाते रहना है. So now, according to that, the next value will be 2.71994. The next value is 2.73141. The next value is 2.73474. And the next value is 2.73571. हमें कहाँ तक जाना है, हमें 3 decimal places तक. So अभी तो 2 decimal places आए हैं. Here it is. The next value is 2.7360001, and the next value is A7 is 2.736011. Yes, 3 decimal point तक same digits आ गए. Therefore, the final answer is the value of A is 2.736. This is the final result. Hopefully, the question of iteration is clear. This is the last thing. And after that, there is a question of vectors. But in vectors, this is the question of plane, which is not in our syllabus now. So this is the end of your paper 2019, October, November. And we have completed this at
12:01. So it means in an hour, we have completed our paper, right? So in the next class, inshallah, we are going to start the paper of mechanics. So see you guys in the next class. Thank you very much. Allah Hafiz.